یہ تمام جو خرافاتی چیزیں تھیں سب کا خاتمہ فرمایا میرے مصطفیٰ نے۔ جوش و جذبہ پایا گیا، اس کی وجہ صرف اتنا ہے کہ 1500 سالہ آپ کی پیدائش ابھی تک اس دنیا میں آئی ہو، اس سے زیادہ فرشتے آپ کے روزے مبارک پہ درود سلام پڑھ کے واپس جا چکے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا جب تک۔ بولتے ہوئے انڈیا میں آپ کا سواگت ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں سوداگر پٹی، جہاں پر سوداگر پٹی جامع مسجد سے جلوس محمدی کا اہتمام کیا گیا۔ اس جلوس میں سوداگر پٹی سے ہوتے ہوئے کاشی پور، بیٹی روڈ، پائک پاڑا تک گیا۔ اس جلوس میں موجود تھے مولانا محمد قربان علی صاحب، مولانا بغداد علی، مفتی آزاد عالم اور دیگر حضرات موجود تھے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں محمد اسلام قریشی کا اہم رول رہا۔ آئیے دیکھتے ہیں کس نے کیا کہا۔ جوش و جذبہ پایا گیا، اس کی وجہ صرف اتنا ہے کہ 1500 سالہ آپ کی پیدائش کا مکمل ہوا۔ سارے جہان کے لیے چونکہ رحمت بن کر تشریف لائے تو اپنے اور بیگانے، غریب اور امیر، بغیر مذہب و ملت کے سارے لوگوں کے لیے آپ نے ہر موقع پہ اور ہر اعتبار سے کام کیا اور ساتھ دیا۔ خصوصیت کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے اپنا اخلاق، محبت، بھائی چارگی، اتحاد، ایکتائی کا پیغام دیا اور لوگوں کے گھر گھر اور دل دل پہنچایا۔ اسی کو آج کے 1500 سالہ یوم ولادت کے موقع پہ اسی پیغام محبت کو ہم نے خصوصی موضوع بنایا، اور علاقے میں تمام مسلمانوں اور جو لوگ اس مجلس میں اس جلوس میں شرکت کر رہے تھے، سب لوگوں کو ہم نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ میرے مصطفیٰ جب تشریف لائے تو اخلاق و کردار اور افعال کو اس انداز میں پیش کیا کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ کے ہوتے چلے گئے، اور آج بھی اگر اسی پہ ہم عمل پیدا رہے اور اسی کو عمل جامہ پہنا کر کے لوگوں کے سامنے ہم آئیں تو کوئی شبہ اور کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سائی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے آگ کر سکتی ہے گلزار خدا پیدا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جلوس محمدی کے طفیل میں دنیا کو آخرت میں بھلا گیا۔ سر غیر مسلمانوں میں ہم دین کو کیسے پھیلائیں؟ اسی تعلق سے تو ہم نے کہا ہے دین کو پھیلانے کا سب سے بہتر جو پہلی بات رکھی سرکار نے وہ اخلاق کی، اس کے بعد اتحاد کی۔ یہ دو چیزیں جب ہمارے اور آپ کے درمیان آ جائیں گی تو لوگ جب دیکھیں گے تب لوگ خود دریافت کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ بہت ساری تاریخیں پڑھی ہوئی ہے کہ جب دیکھا کہ یہ سارے جہان کے رسول بن کر کے آئے اور غریبوں کی موٹری اٹھا رہے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کر رہے ہیں، اور جو کچلے دبلے ہوئے ہیں ان کو زمین کی سطح سے اٹھا کر کے بلندی تک پہنچا رہے ہیں۔ کیا یہ آدمی ہے یا آدمی کی صورت میں کوئی اور ہے؟ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں اللہ کی جانب سے رسول بن کر آیا ہوں اور رحمت والا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ یہ ہے آپ کا آنے سے ہی کائنات میں بہار آ گئی۔ جو ظلم و بربریت کا دور تھا اور ہر طرف ڈکیتی، جوا بازی، زنا کاری، تمام جو خرافاتی چیزیں تھیں سب کا خاتمہ فرمایا میرے مصطفیٰ نے، اور اپنے کردار و اعتبار سے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کو مانو گے تبھی تم دنیا میں کامیاب رہو گے۔ اب رہی بات کہ جب تک ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و اطوار کو نہیں اپنائیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس راستے پہ چل کر اپنی امت کو چلنے کا حکم دیا۔ ایسا نہیں کہ مصطفیٰ نہ چلے ہوں، بلکہ خود میرے مصطفیٰ اس راستے پہ چلتے ہیں، اذیتیں برداشت کی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، بہت سی مصیبتیں اور پریشانیوں کو جھیلا ہے مصطفیٰ نے، اور اس پر چلا اور اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ اگر تو مصیبت کو جھیل کر اور میرے کردار و اطوار کو اپنا کر
अगर तुम अपना कर ज़िंदगी गुजारोगे तो उसमें तकलीफ़ें भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, और मुसीबत आएगी तो तुझे सब्र करना होगा। इसका जज़ा अल्लाह अता फरमाएगा। मौलाना साहब, आज के दौर में देखा जा रहा है कि हमारी जो नई नस्ल है वो सीरत नबी से दूर होती जा रही है। इनको जोड़ने के लिए क्या अमल करना चाहिए? जोड़ने का आज सबसे पहली बात तो ये है कि आज हर बाप अपने बेटे को मॉडर्न बना रहा है, मदरसे से दूर कर दिया, मज़हब इस्लाम की तालीम से दूर कर दिया, और हम जिस तरह इस मज़हब इस्लाम से हम दूर हो रहे हैं और अगियारों के धर्म को अपना रहे हैं, तो समझ जाइए कि हमारे अंदर न एकताई आएगी, न हमारे अंदर भाईचारगी आएगी। इसलिए कि एकताई, भाईचारगी, इत्तेफाक, इत्तेहाद सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब इस्लाम के अलावा किसी मज़हब में नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम पूरी आलम के लिए, हर जाति के लिए, मानव जाति के लिए पैदा किए गए थे। और यही सीन आज देखा गया कि आपके जुलूस में आपको सेवा दे रहा है एक हिंदू आदमी। देखिए, आज इसीलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए थे, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा हर कौम के लिए रहमत बनकर आए। यहाँ तक कि मेरे मुस्तफ़ा की आमद की बरकत से सिर्फ मुसलमानों को ही फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरे क्या पैगाम देना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु देखिए, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूरी कायनात हर तौर पर, यानी कोई ऐसी बुराई बची नहीं थी जो इस पूरी कायनात में नहीं हुआ, और जब आखिरी सिसकी ले रहा था इंसानियत, जब अब समझिए कि इंसानियत मुरझा चुकी थी, उसमें रूह डालने की ज़रूरत थी। अब इंसानों का वजूद ख़त्म होने वाला था, इंसानों से इंसानियत तो पहले ख़त्म हो चुकी थी। जब इस तरह के मामलात आ गए और पूरी दुनिया तारीकी में और तारीकियों के घटाटोप अंधेरे में दब चुकी थी, कोई किसी के हुसाने हाल नहीं था, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने नबी आखिरुज़्ज़मा बनाकर, ख़ातिमुन नबिय्यीन बनाकर अपने महबूब दो जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस आगदाने गीती पर भेजा। तो आपने पूरी कायनात को इंसानियत का दर्स दिया, मुसावात का दर्स दिया, भाईचारा का दर्स दिया। बेटियां जिंदा दरगोर होती थी, वो दरगोर होना बंद हो गई, बल्कि पूरी कायनात को जीने का एक सलीका अता फरमा दिया। शुक्रिया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे 1,70,000 फरिश्ते, 70,000 दिन में, 70,000 रात में, 1,70,000 फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में मदीना शरीफ में दरूद पाक पढ़ते हैं, दरूद सलाम पढ़ते हैं। और जो फरिश्ता एक बार पढ़ के चल जाता है वो दोबारा कभी नहीं आता। तो हमारे आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5,40,000 दिन हो गए, 1500 साल, 5,40,000 दिन। अगर 1,40,000 फरिश्ते अगर दरूद पाक पढ़ रहे हैं तो 75 अरब 60 करोड़ बार फरिश्ते आ चुके हैं आपके रोज़े मुबारक पे। वो अब दोबारा नहीं आएंगे, जो एक बार चले जाते हैं पढ़ के दोबारा उससे नसीब नहीं होता। आज दुनिया की आबादी 8 अरब की है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और आज तक मुझे नहीं लगता कि 75 अरब की आबादी अभी तक इस दुनिया में आई हो। उससे ज़्यादा फरिश्ते आपके रोज़े मुबारक पे दरूद सलाम पढ़ के वापस जा चुके हैं, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा जब तक क़यामत ना आ जाए। आज हमारा जो ये जुलूस निकला है अहमद शाह मस्तान सौदागर पट्टी जामा मस्जिद से, जो हर साल की तरह इस साल भी बहुत आलीशान से निकला है। अल्लाह का शुक्र है कि इस जुलूस में कोई जात, कोई बिरादरी, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम नहीं देखा जाता। सब हम मिलजुल के हर साल की तरह इस साल भी हम लोग निकाला, और आज तक कभी, ये सालों साल से निकला, कभी भी कोई भी कैसी बात आज तक कभी नहीं हुई। और यही नहीं, पूरे कलकत्ते में बहुत जगह निकलता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कलकत्ते में इतना अमन है, यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अदर स्टेट में जो होता है वो हमारे कोलकाता में या बंगाल में नहीं है। अब देखिए 20 दिन के बाद दुर्गा पूजा है, कोई मसला नहीं है, ऐसे हम लोग ऐसी दुर्गा पूजा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं,
आज जुलूस मोहम्मदी मनाया गया है, लेकिन कलकत्ते में, बंगाल में कोई मसला नहीं है। ये सारे मसले अदर स्टेट में हैं और हमारे यहाँ के जो प्रशासन है या यहाँ की हुकूमत है या यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट है बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करता है। कोलकाता पुलिस की जितनी भी तारीफ करेंगे हम उतना कम है, यहाँ की सरकार की जितनी तारीफ करें उतना कम है। कोई ऐसा मसला नहीं है और पूरे कलकत्ते में, पूरे बंगाल में अमन है। पूरी दुनिया में अमन के लिए खास क्या कहना चाहेंगे? लोग जो मुसलमान है खास तौर पर वो अपने इखलाक का गादी बने, अपने इखलाक से गैर मुस्लिमों का दिल जीते हैं। चीज़ है कि रास्ते में अगर पत्थर पड़ा हो तो उसको भी साइड कर दो, जो पीछे वाले को तकलीफ ना दे वो किसी और को क्या तकलीफ देगा। इस्लाम ने हमेशा अमन सिखाया है, लेकिन इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जिसके अंदर इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो वो सच्चा मुसलमान बन नहीं सकता। उसे क्या मालूम, नाम रखने से तो मुसलमान हो नहीं सकता। इल्म हासिल करना होगा, एजुकेशन हासिल करना होगा, इस्लाम की जानकारी हासिल करनी होगी, तभी आप सच्चे मुस्लिम बन पाएंगे। इस्लाम किसी को तकलीफ नहीं देता, एक पड़ोसी को भी तकलीफ नहीं देता। हमारे हजरत मोहम्मद ने तो ये फरमाया है किसी को तकलीफ मत दो। जब हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाक़या है, जब रास्ते से गुजरते थे तो एक औरत आपको ऊपर से कूड़ा फेंकती थी। उस दिन तक उस औरत ने कूड़ा नहीं फेंका, तो आपने देखा कि आज कई दिन हो गए वो औरत कूड़ा नहीं फेंक रही है, तो आप उसके घर के मिलने तो जाके देखा कि वो औरत बीमार है। तो वो औरत आपका इखलास, आपकी मोहब्बत देख के इस्लाम में दाखिल हो गई। तो ये तो ऐसा मजहब है, किसी को तकलीफ देता नहीं है। आज हम जो निकले हैं ये जुलूस लेके, कोई चिल्लाचाली नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई ऐसा डीजे नहीं, यहाँ तक कि मुंह में पान नहीं, गुटखा नहीं, सिगरेट नहीं, बीड़ी नहीं, सब सर झुका के अदब के दायरे में सब गए हैं। ये ऐसा जुलूस है, कोई इसमें बदतमीजी नहीं होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और मजदूरों के मसीहा समझे जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे वर्ल्ड में सबके मसीहा समझे जाते हैं, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, आप सबके लिए रहमतुल आलमीन बन के आए हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बन के आए हैं। तो हमको भी उनके नक्शे कदम पे चलना होगा, जब भी हम सच्चे मुस्लिम बन सकते हैं। खास तौर से आप गरीबों और मजदूरों के लिए उनके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करते थे, जो अब खाल देखने को मिलता है, जबकि हम उन्हीं के उम्मती हैं। हमने तो गुलामों को आज़ाद किया है और बहुत बड़ा सवाब है किसी गुलामों को आज़ाद करने का। हम किसी को क्या गुलाम बनाएंगे? जो आका ने हमारे फरमाया है, हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, उनकी सुन्नत पे अमल करेंगे, तभी हमारी आखिरत समझ सकती है, तभी हमारी बख्शाइश है। आका ने जो बता के चले गए उसी पे हमें अमल करना है और अल्लाह के हुक्म को मानना है, आपकी सुन्नत पे अमल करना है, जब भी हम सच्चे मुस्लिम बन सकते हैं। हमारे नौजवान भाइयों को आप आज के दिन में खास तौर पर ऐसा क्या कहना चाहेंगे वो अपने 365 दिन इससे बेहतर बनाएं? देखिए, आज जो भी हालात हैं पूरे सब सारी तरफ में ये हमारे अमालों का नतीजा है, ये हमारे अमालों का नतीजा है। जिस दिन हम हर गलत काम छोड़ देंगे और लोगों की मदद करना सीख जाएंगे, अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, उस दिन हम सब कामयाब हैं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। आज जो भी है वो हमारे अमालों का नतीजा है। हमें अपने ऊपर देखना चाहिए कि हमसे क्या गलती है जो आज ऐसी नौबत आ गई है, हर तरफ परेशानी का आलम है।